جاری ہے۔ روس 535 ملین یورو خرچ کر کے سرمائی اولمپکس کے لیے یہ تعمیرات کرا رہا ہے۔ ایک اولمپک ولیج ساحلی علاقے میں بنایا جا رہا ہے، جبکہ 2 دیگر ولیجز پہاڑی علاقے میں سوچی شہر کے قریب تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ 3000 ایتھلیٹس ونٹر اولمپکس کے تحت منعقد ہونے والے کھیلوں میں حصہ لینے والے ہیں۔ 24 جنوری کو یہ تعمیرات عوام کے لیے کھول دی جائیں گی۔ فلسطین کے غزہ پٹی میں قدامت پسند عیسائیوں نے آج کرسمس کا تہوار منایا۔ قدامت پسند عیسائی جولین کیلنڈر کے مطابق 7 جنوری کو کرسمس مناتے ہیں۔ غزہ کے عیسائی روایتی انداز میں گرجوں میں اکٹھے ہو کر کرسمس مناتے ہیں۔ 400 سال قبل مغربی یورپ میں جولین کیلنڈر کی جگہ پر گریگورین کیلنڈر کا چلن شروع ہوا تھا۔ غزہ میں 10,70,000 مسلمان آباد ہیں۔ حماس کے کنٹرول والی غزہ پٹی میں 2000 کے لگ بھگ قدامت پسند عیسائی بھی آباد ہیں۔ والمذود موضعا قدسيا ادھر مصر میں بھی عیسائیوں کے قبطی مسلک سے تعلق رکھنے والے لاکھوں افراد نے آج کرسمس منائی۔ عیسائی برادری معزول صدر محمد مرسی کے حامیوں کی جانب سے گرجوں پر حملوں کے خدشات ظاہر کر رہے تھے، تاہم خدشات کے برعکس کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ قاہرہ کے گرجوں میں عیسائیوں نے اکٹھے ہو کر ملک کے نئے آئین پر ریفرنڈم کی کامیابی کے لیے دعا کی۔ گرجوں میں منعقد سروس میں شامل بیشتر عیسائیوں نے کہا کہ مرسی کے حامی اخوان کی پوزیشن کمزور کیے جانے کے بعد مصر میں عوام کے درمیان اتحاد پیدا ہوا ہے۔ مصر میں عیسائیوں کی آبادی ملک کی مجموعی آبادی کا 10% ہے۔ عیسائی عبوری صدر عدلی منصور کی سراہنا کرتے دکھائی دیے۔ تو یہاں پر رکیں گے ایک اور چھوٹے سے بریک کے لیے۔ نیشنل بال پینٹنگ کے فائنل مقابلے میں لکی، پپو اور چھٹکاؤ نے حصہ لیا۔ جہاں لکی نے چاک مٹی، پپو نے پی او پی، وہیں چھٹکاؤ نے جے کے بال پٹی کا بیس بنایا اور کم پینٹ کا استعمال کرتے ہوئے دیوار کو سب سے اسموتھ اور خوبصورت فنش دیا اور یہ پرتیوگتا جیت۔ وائٹ سیمنٹ والی جے کے بال پٹی از دا بیسٹ۔ سیلن سے بھی پپڑی کا کوئی چانس نہیں ہوتا، دیواریں بول اٹھیں گی۔ بھاگ دوڑ بھری زندگی، سٹریس، جنک فوڈ، پولوشن، نتیجہ ہر وقت تھکان، کمزوری اور اپنوں سے بڑھتی دوری۔ کھویا ہوا جوش اور طاقت واپس پائیں ہمدرد ہمدوجین سے۔ شلاجیت، کیسر، امبر، اشوگندھا اور موسلی جیسی 22 مفید جڑی بوٹیوں سے بنا فارمولا بنائے آپ کو اندر سے مضبوط۔ تو ہمدوجین کے ساتھ رہیں ہمیشہ تیار ایک بہتر زندگی کے لیے روزانہ۔ ہمدرد ہمدوجین ہربل ریوائٹلائزر مردوں کے لیے۔ قدرتی طور پر آپ کے بالوں کی دیکھ بھال کے لیے سب سے مفید حبیب سنا، آولا، برنگ راج اور برہمی سے بھرپور حبیب سنا۔ چون پراش کھاؤ یا نہ کھاؤ پر بادام پراش ضرور کھاؤ۔ بادام، کیسر، پستہ کا ایک مرکب جو بدن میں رکھے طاقت کو برقرار۔ نیو شما کا بادام پراش۔ بریک بعد آگے بڑھیں گے۔ خبر دیویانی معاملے سے جڑی ہے۔ ہندوستانی سفارتکار دیویانی کھوبرا گڑے کے خلاف الزامات وضع کرنے کے لیے 13 جنوری کی تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ دوسری جانب دیویانی کھوبرا گڑے نے تاریخ کو آگے بڑھانے کی درخواست کی ہے، لیکن استغاثہ کے وکیل پریت بھرارا نے ڈیڈ لائن میں توسیع کی دیویانی کی عرضی کی مخالفت کی ہے۔ دیویانی کھوبرا گڑے معاملے میں سفارتی سطح پر فی الحال کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی ہے۔ امریکہ ضرور اس معاملے کو حل کرنے کی بات کہہ رہا ہے، لیکن اس کی باتیں محض زبانی جمع خرچ تک ہی محدود ہیں۔ ادھر دیویانی کھوبرا گڑے کے خلاف الزامات وضع کرنے کی ڈیڈ لائن قریب آ رہی ہے۔ دیویانی کے وکیل ڈینیل ارشک نے نیو یارک کی ضلع عدالت میں دیویانی کے خلاف الزامات وضع کرنے کی تاریخ میں 1 مہینے کی توسیع کی درخواست دی ہے۔ دیویانی کے وکیل کے مطابق
इस मामले में सिफारती सतह पर कई अहम उमूर पर पेशरफ्त जारी है। ऐसे में अगर इल्जामात वज़ा कर दिए जाते हैं तो केस पर मनफी असरात मुरत्तब होने का इम्कान है। दूसरी जानिब इस्तिगासा के वकील प्रीत भरारा ने 13 जनवरी को ही इल्जामात वज़ा किए जाने की मांग की है। भरारा ने मजिस्ट्रेट को इस ज़िम्न में लिखा है कि इल्जामात वज़ा करने के बाद भी सिफारती सतह पर पेशरफ्त को जारी रखा जा सकता है। भरारा के मुताबिक इस मामले पर कई हफ्तों तक बहस हो चुकी है, इसलिए वो वकील दिफा के दरख्वास्त की मुखालफत करते हैं। उधर अमरीकी हुकूमत के नायब तर्जुमान मैरी हाफ ने वाज़ेह किया है कि अमरीका इस मसले का जल्द अज जल्द हल चाहता है। अमरीका का कहना है कि इसकी जानिब से पूरी कोशिश की जा रही है कि मामले से हिंद अमरीका ताल्लुकात मुतासिर न हों। इस बीच कहा जा रहा है कि मसला हल करने के लिए 3 निकात अमरीकी इंतजामिया के ज़ेरे गौर हैं। इनमें सर फहरिस्त देवयानी को मुकम्मल डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी देना है। दूसरा रास्ता अक़वाम मुत्तहिदा में देवयानी के तबादले को मंजूर करना है, जबकि तीसरा हल अदालत में जारी केस का हवाला देते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में देवयानी की तकर्री को कबूल नहीं करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। रियासत उत्तर प्रदेश के शहर मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरा कुछ नौजवानों से लश्कर तैयबा के रब्त जब्त में होने की खबरों को दहली पुलिस के खुसूसी सेल ने यकसर खारिज कर दिया है। दहली पुलिस के खुसूसी सेल ने वाज़ेह किया है कि मेवात से ताल्लुक रखने वाले लश्कर के 2 मुश्तबा दहशतगर्द मुजफ्फरनगर के जिन अफराद से राब्ते में थे वो मुजफ्फरनगर के फसाद मुतासरीन नहीं है। दिल्ली पुलिस के खुसूसी सेल ने उन तमाम खबरों को मुस्तरद कर दिया जिनमें लश्कर तैयबा के जरिए मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन से राब्ता बनाए जाने का दावा किया जा रहा था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान का ताल्लुक मुजफ्फरनगर से जरूर है, लेकिन वो फसाद मुतासरीन नहीं हैं। मैं यहाँ पे आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि लियाकत और जमीर दोनों मुजफ्फरनगर राइट्स विक्टिम नहीं है, उनसे इनका कोई सरोकार नहीं है। यद्यपि वो मुजफ्फरनगर में रहते हैं लेकिन वो राइट विक्टिम्स नहीं है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुश्तबा दहशतगर्दों से पूछताछ और उनके फोन रिकॉर्ड्स की जांच पड़ताल के बाद ये बात सामने आई थी कि मुजफ्फरनगर के लियाकत और जमीर से मुश्तबा दहशतगर्द राब्ते में थे। मुजफ्फरनगर के बाशिंदे जमीर से मुताल्लिक पुलिस ने वाज़ेह किया कि उसने मुश्तबा अफराद के गैर कानूनी काम में साथ देने से इनकार किया था, इसलिए जमीर को इस मामले में सरकारी गवाह बनाया जाएगा। दिल्ली में 2 मुलाकातें हुई, उस मुलाकातों में उसे इनकरेज करने की कोशिश किया कि वो कुछ लोगों को इंतजाम करे जिससे वो किडनैपिंग की जा सके और उस पैसे को मस्जिद बनाने में इस्तेमाल किया जाए। उसने जब जमीर ने देखा कि ये इनका काम ये थोड़े से ऐसा काम करना चाहते हैं जो वो उसके लिए मंजूर नहीं था, तो जमीर बैकआउट कर गया और उसके बाद उसने इनसे कांटेक्ट नहीं किया। हमने लियाकत और जमीर का स्टेटमेंट हमने कोर्ट में इनको पेश किया और 161 स्टेटमेंट सीआरपीसी के तहत स्टेटमेंट के अलावा हमने इसको 164 सीआरपीसी के तहत भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया है और हम इसे एज विटनेस साइट करेंगे। इससे हमारा केस और भी पुख्ता होगा। श्रीवास्तव ने बताया कि मुश्तबा दहशतगर्दों से अभी पूछताछ जारी है। लश्कर तैयबा के जरिए मुजफ्फरनगर के फसाद मुतासरा नौजवानों से राब्ता बनाने के बारे में फैली खबरों पर खूब सियासी बयानबाजी हुई। समाजवादी पार्टी और मुस्लिम तंजीमों ने इस किस्म की खबरों की मजम्मत करते हुए इसे राहुल गांधी के मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन पर दिए गए मुतनाज़ा बयान से जोड़ दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। उधर मुजफ्फरनगर फसाद के बाद फैसला आपका, इस मौजू से तकसीम की जाने वाली किताब मौजूए बहस बनी हुई है। इस किताब में मुजफ्फरनगर फसाद के बारे में तफसील बताने की कोशिश की गई है। इस किताब के नाम पर पहले सैकड़ों लोगों से चंदा इकट्ठा किया गया, बाद में इसकी इशाअत अमल में आई और दिल्ली में इस किताब का इजरा भी अमल में आया। किताब के मुसन्निफ का नाम है एडवोकेट जगवीर सिंह। इस किताब में कई बातें मुतनाज़ा हैं, लेकिन इंतजामिया ने इस तरफ से आंखें बंद कर रखी हैं। इस किताब की तशहीर भी खूब हो रही है। खासतौर से बीजेपी के लिए यह किताब एक दिलचस्प मौजू बन गई है।
यहाँ ये मुमकिन नहीं है कि यहाँ हिंदू भी रहेगा मुसलमान भी रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक बिरादरी ही यहाँ रहेगी। जब दोनों को साथ रहना है तो इसमें भावना ये जो लेखक है उन्होंने इसमें बहुत सारे फैक्ट्स फिगर दिए हैं जिनको नकारा नहीं जा सकता। फिर भी एक ऐसे वातावरण की हमें जरूरत है कि जिसमें दोनों को परस्पर तालमेल से रहने की बहुत आवश्यकता है। तभी ये कारगर हो सकता है कि यदि हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे तभी ये बात बन सकती है कि समाज में अमन चैन संभव हो सकता है। तुष्टीकरण की नीति शासन ने एक कौम को, एक समाज को, हिंदू समाज को झोंक दिया है। उसके साथ बहुत ही अन्यायपूर्वक उन्होंने अपने शासन की सारी सीमाएं लांघकर अपना। अफगानिस्तान में एक सर्कस स्कूल बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाने और उनकी सलाहियतों की नशोनुमा देने में माविन साबित हो रहा है। अब तक स्कूल से सैकड़ों बच्चे इस्तिफादा कर चुके हैं। ट्रैवलिंग एजुकेशनल एंटरटेनमेंट ग्रुप के ज़ेर एहतमाम अफगानिस्तान में बच्चों के लिए मोबाइल मिनी सर्कस कायम किए जा रहे हैं। इन सर्कस स्कूलों में बच्चों को जगलिंग, जिम्नास्टिक्स, एक्रोबैटिक्स, सिंगिंग, थिएटर, कॉमेडी के अलावा मैजिक ट्रिक्स सिखाए जाते हैं। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि इनका मकसद न सिर्फ बच्चों की सलाहियतों को परवान चढ़ाना है बल्कि उनके चेहरों पर खुशियां भी लाना है। I think Afghanistan needs something that is fun with lots of colors and enjoy. There has been so much war and so many sad things happening in Afghanistan. I think it's important to have something to look forward to and something to be excited about. सर्कस स्कूलों से अब तक सैकड़ों तलबा इस्तिफादा कर चुके हैं। अहमद ने इसी स्कूल में तरबियत हासिल की है और अब वो यहीं पर बच्चों को करतबबाजी के गुर सिखा रहे हैं। ما که کار انتخاب کردم یک شوق یگانه شوق ما که بود همین جمناستیک بود که من یک آرزو این بود که من رسیدم برش و من بسیار خوش دارم که همین قسم که من اطفال برم استادا سر ما کار کردن. من خوش دارم که امروز اطفال که جلسه ما کار کنم چیزی که یاد دارم برای اینا یاد بدم. اومدم هم ساعت متشه و ورزشم شه و ساعت مارم خوب شه و آمدیم که چیزها رو یاد بگیرم که مادر پدرم تشویق میکنم. सर्कस स्कूल के इंतजामिया के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ सूबों में कैंपस कायम किए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इससे इस्तिफादे का मौका मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। तो आलमी मंजर में फिलहाल इतना ही। आदाब। आलमी मंजर को पेश करने में ताउन किया प्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं अमेरिकन टाउनशिप। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम मोहतरम नाजरीन, आदाब। सरजमीन लखनऊ पर जश्न मिलादुन्नबी में आज आपका दिली इस्तकबाल करते हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस मालूमाती प्रोग्राम में आज हमारे साथ मोहतरम मौलाना अब्दुल अली फारूकी साहब तशरीफ फरमा हैं, जो कि आपके सवालात के जवाब देने के लिए यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं आपको ये भी बावर करा दूं कि इस मरतबा हमने एक और बहुत मारूफ नातख़्वां सुंदुस एहसन साहिबा को अपने स्टूडियो मदऊ किया है। नाज़रीन इकराम, हमारे प्रोग्राम्स की रिवायत रही है कि इस खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज़ हम हम्द बारी ताला या नात मुबारक से करते हैं। इससे पहले कि मोहतरम मौलाना अब्दुल अली फारूकी साहब को ज़हमत सुखन दी जाए, आइए एक बार फिर उसी रिवायत की पासदारी करते हुए हम सुंदुस एहसन से दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारे प्रोग्राम का आगाज़
नात मुबारक से करें, क्योंकि ये यकीन है हमें कि जब जब हमारे प्रोग्राम का आगाज हमद बारी ताला या नात मुबारक से होता है तो उसे कामयाबी की जमानत मिल जाती है। जिस दिल में मोहब्बत हो उनकी हर वक्त मचलती रहती है, जिस दिल में मोहब्बत हो उनकी हर वक्त मचलती रहती है। दिन रात की कोई कैद नहीं, ये शम्मा तो जलती रहती है। दिन रात की कोई कैद नहीं, ये शम्मा तो जलती रहती है। महबूब खुदा सोए हैं अभी, पढ़ लेंगे नमाज़े असर अली, सूरज भी चमकता रहता है और शाम भी ढलती रहती है। आइए नात मुबारक के इन अशार के साथ सुंदुस अहसन से दरख्वास्त करते हैं कि वो बारगाह रिसालत माब में अपनी अकीदतों और मोहब्बतों का नजराना बशक्ल नात पेश करें। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे वहाँ तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। न रूहे अमी न अर्शे बरी, न लोहे मुबी कोई भी कहीं। न रूहे अमी न अर्शे बरी, न लोहे मुबी कोई भी कहीं। खबर ही नहीं जो रमज़े खुले अज़ल के यहाँ तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। इशारे से चाँद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया। इशारे से चाँद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया। गए हुए दिन को असर किया, ये ताहो तवा तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। ये शम्सो कमर, ये शामो सहर, ये बरको शजर, ये बाहो समर। ये शम्सो कमर, ये शामो सहर, ये बरको शजर, ये बाहो समर। ये रूहे अमी, ये अर्शे बरी, ये हुक्मे रवा तुम्हारे लिए।
हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे वहाँ तुम्हारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुंदुस एहसन। मोहतरम नाज़रीन इकराम, मैं शुक्रगुजार हूँ मोहतरमा सुंदुस एहसन साहिबा का। इन्होंने बहुत खूबसूरत आगाज़ किया, हमें कामयाबी की ज़मानत मिल गई। आइए अब ऊपर की शख्सियत पर गुफ्तगू करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसके सदक़े में इस कायनात को पैदा किया गया है। मैंने अर्ज़ किया था आपसे इब्तदा में कि हमारे साथ बहुत मारूफ आलिम दीन मोहतरम अब्दुल अली फारूकी साहब तशरीफ़ रखते हैं। ज़ाहिर है इससे पहले भी हम आपको ज़हमत देते रहे हैं, तो आइए गुफ्तगू के सिलसिले को दराज करते हुए मोहतरम, ज़ाहिर है वो बरगुज़िदा शख्सियत, वो बुजुर्ग शख्सियत जिसके सदक़े में इस कायनात को पैदा किया गया, सीरत मुस्तफ़ा और इस्लाह मुआशरा बहुत अहम मौजू है, और चाहता यह हूँ कि यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ हो और हमारे नाज़रीन को मालूम हो कि इस्लाह मुआशरा में सीरत नबवी की क्या अहमियत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को नमूने के तौर पर पेश करते हुए फरमाया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। इस दुनिया को कभी भी इस बात का शिकवा नहीं रहा कि उसकी रहनुमाई करने वाले, उससे अच्छी अच्छी बातें कहने वाले मौजूद नहीं रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छी लफ़ाज़ी कर लेना, अच्छी तकरीरें कर लेना, अच्छा कलाम कर लेना, ये हर दौर में इस किस्म के लोग दस्तयाब रहे हैं और आज भी मौजूद हैं और हमेशा मौजूद है। लेकिन जो कहा उसको अपने अमल से साबित कर देना, ये हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इम्तियाज है। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद में यूँ फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। ऐ ईमान वालो, तुम वो बात कहते क्यों हो जिस पर अमल खुद नहीं करते। अल्लाह को ये बात बहुत नागवार है और बहुत नापसंदीदा है कि तुम वो बात कहो कि जिसके ऊपर तुम खुद अमल नहीं करते। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी का और आपके पैगाम का इम्तियाज ये है कि आपने जो कुछ कहा सब पर अमल करके दिखाया। 23 बरस की मुख्तसर सी हयात आपकी नबूवत के ऐलान के बाद, 40 बरस की उम्र शरीफ जब आपकी हुई तो आपने ऐलान नबूवत किया अल्लाह के हुक्म से, और 63 बरस की जब आपकी उम्र शरीफ हुई तो आपने इस दुनिया से रुखसती ली। 23 बरस की मुख्तसर सी मुद्दत, नबियों में सबसे कम मुद्दत ये हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लेकिन 23 बरस की मुख्तसर सी मुद्दत में सब कुछ पूरे आलम को अता करके आप दुनिया से तशरीफ ले गए। और आज मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि आज के दौर को तरक्की का दौर कहा जाता है, इल्म का दौर कहा जाता है, टेक्नोलॉजी का दौर कहा जाता है, दौर इल्म कहा जाता है। मगर मैं ये कहता हूं कि इस दौर इल्म में बेचैनियां बढ़ी हैं, बेकरारियां बढ़ी हैं, रिश्ते खत्म हुए हैं, रिश्ते और नाते कमजोर हुए हैं। ऐसे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि सफर सितारों का करने वाले सुकून की खातिर तड़प रहे हैं। सफर सितारों का करने वाले सुकून की खातिर तड़प रहे हैं। अब इनके कुल कालिजों को दे दे नबी का बख्शा निसाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा इम्तियाज ये है कि आपने अपनी जिंदगी के अंदर सब कुछ अमल करके दिखा दिया। और वो लोग कि जो उस वक्त की जमीन के सबसे बदतरीन लोग थे, उन पर आपने मेहनत की और मेहनत करके 23 बरस की मुख्तसर सी मुद्दत में ऐसा बना दिया कि वो जमीन के सबसे कीमती लोग बन गए। ये सब मेहनत थी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, कि यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इम्तियाज है। अब इस चीज को आप लेकर चलिए मुआशरे के सिलसिले में, मुआशरे की किसी भी रुख को आप लीजिए, किसी भी जाविये से आप उसको देखना चाहिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत
آپ کا کردار، آپ کی تعلیمات، اور صرف زبانی تعلیمات نہیں بلکہ عملی نمونے زندگی کے ہر میدان میں آپ کے لیے موجود ہیں، اور اصلاح کا ہر پہلو آپ کی زندگی میں موجود ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں خود یہ فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ اے نبی آپ کو تو اخلاق عظیم عطا کیا گیا، خلق کا جو اعلیٰ ترین تصور ہے وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے کہتا ہوں کہ حضور نے فرمایا صل من قطعک واعفو عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ دیکھو تم سے جو کٹے تم خود بڑھ کر اس سے جڑ جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واعفو عمن ظلمک، تم پر جو ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو۔ واہ واہ واہ۔ واحسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے اس کے ساتھ تم حسن سلوک کرو۔ برائی کا جواب برائی سے نہ دے کر اچھائی سے دو تو برائی مٹے گی۔ واہ واہ۔ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اس سے ملتی جلتی باتیں بہت سے دنیا کے بڑے لوگوں نے کہی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن سوال صرف اتنا ہے کہ ان کہنے والوں نے اپنی زندگی میں خود اس کو کر کے برت کر دکھایا ہو، اس کی مثال ہم کو نہیں ملتی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے جو کہا اس پر عمل کر کے دکھایا اور بتایا کہ کٹنے والوں سے جڑا کیسے جاتا ہے، ظلم کرنے والوں کو معاف کیسے کیا جاتا ہے، اور بدسلوکی کرنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتیاز ہے، اور آپ نے جس معاشرے کی تشکیل کی اس معاشرے کے افراد نے اس پر عمل کر کے دکھایا دنیا کو کہ رہنمائی ایسی ہوتی ہے۔ اسی لیے میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ رہنما بے مثال تو اس رہنما سے رہنمائی حاصل کرنے والے بھی بے مثال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم ناظرین کرام، یہ تھے جناب محترم مولانا عبدالعلی فاروقی صاحب، جنہوں نے گفتگو کا آغاز کیا، نہایت مبارک اور مقدس گفتگو کا آغاز کیا۔ ابھی ہم وقفہ لیں گے، لیکن وقفہ لینے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں گے اگر آپ بھی ہمارے اس مبارک اور مقدس پروگرام میں شامل ہو کر عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کو تہنیتی پیغامات کی ترسیل کو یقینی بنانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، آپ ہمیں SMS بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دیں ہمارے ٹول فری نمبر جن پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، نوٹ فرما لیجئے 180034544026۔ ہمارا ایک اور ٹول فری نمبر ہے 180042544089۔ ناظرین کرام، اگر آپ ہمیں STD نمبر پر کال کرنا چاہتے ہیں یا اپنے پیغامات کی ترسیل کو یقینی بنانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں STD نمبر پر بھی کال کر سکتے ہیں۔ ہمارا STD نمبر ہے 08415305010۔ وقفے پہ جانے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اگر آپ SMS کے ذریعے اپنے پیغامات کی ترسیل کرنا چاہتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کو وہ تمام تر میسج بھیجنا چاہتے ہیں جن کا تعلق سیرت نبوی سے ہے یا عید میلاد النبی سے ہے، تو آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں۔ SMS کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ٹائپ کرنا ہے JMN، اپنا میسج اپنا نام اور شہر کے نام کے ساتھ بھیج دیجئے 56263579 پر۔ چند ہی لمحوں میں ایک بار پھر آپ سے روبرو ہوں گے۔ فی الحال لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، دیکھتے رہیے سرزمین لکھنؤ سے جشن میلاد النبی۔ ادا کروں نماز مسجد حرام میں، ایسا دن آئے میرے اللہ، یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ETV اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خود